पूर्वी दिल्ली में स्थित द लीला एम्बियंस होटल में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 शो का सफल आयोजन हुआ। शो का आयोजन अंकिता सरोहा के द्वारा आयोजित किया गया, जिनका उद्देश्य महिला को बढ़ावा देना और उन सभी को एक मंच प्रदान करना है जहां पर वह अपना टैलेंट दिखा पाए। शो में भारत के अलग अलग राज्यों से और साथ ही साथ विदेशों से भी आकर महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी महिला प्रतिभागियों ने रैंप पर अपनी प्रतिभा का खूब जलवा बिखेरा और कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया। मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन शो में बॉलीवुड स्टार मिस नीलम कोठारी सोनी ने उपस्थित होकर सभी प्रतिभागियों का हौसला अफजाई किया। आज बहुत मजा आया मिसेस इंडिया इंटरनेशनल को अटेंड करके। सब कंटेस्टेंट्स जो आए हैं सब विनर्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि घर को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ आए हैं विद सो मच पैशन एंड इट वाज अ प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ देम। कोई सिडनी से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, एंड you've done a fantastic job, Ankita, putting this whole thing together and thinking of women and encouraging women to give them courage and confidence to get out there and do this. Wonderful. Good. I think the show was fantastic, especially मैं contestants के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो performance दिखाई है, जिस तरह उन्होंने answer किया है, they have been themselves and I'm always honored to be a part of Mrs. India International Queen. Thanks to Ankita. It's been a family now, coming for the third time, and I totally love the show. It is really amazing. I think सभी participants को ये कहना चाहूँगा कि they are all winners in themselves. Every other participant was so good. इतना difficult हो गया था decide करने के लिए who's the best. And my numbers are almost the same for all the contestants, to be very honest. And I want to really thank them for bringing their best self over here and for just and all the husbands for supporting their wives. So really thankful. Mrs. India International Queen is all about empowering women. और हमारे पास amazing queens है, amazing winners है as always. So for 2022 we have Mrs. Parul Sharma from classic category as a winner, and of course from Mrs. category we have Pallavi Zatkar Tandon, and I'm so proud of them. हमारा मोटो ही ये है कि be strong, be confident, be you. And as I always say कि if you believe yourself you can make anything happen. And Mrs. India International Queen में हम यही believe करते हैं कि women have immense potential and capabilities in them. All they need is the strength to realize that. And if you believe in yourself, if you're strong, if you're confident, then this is the best platform for you to showcase your talent and live your dreams. वही इस शो में साल 2016 में मिस्टर वर्ल्ड रह चुके रोहित खंडेलवाल भी उपस्थित हुए और शो की जमकर तारीफ की। वहीं बात करें जूरी मेंबर की तो उसमें उपस्थित हुई मिसेस अंकिता सरोहा, डॉक्टर ज्योत्सना चड्ढा, मिसेस शर्मिष्ठा दास दे, मिसेस शिप्रा शर्मा, मिसेस मंजू उपाध्याय, मिसेस उपासना कालिया, मिसेस सोनाली शेरी समेत कई गणमान्य मेहमानों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करवाई। इन सभी ने बड़ी सूझबूझ के साथ सभी प्रतिभागियों का चयन किया। Hi, I'm Pallavi Tandon and I'm winner of Mrs. India International Queen 2022. Firstly, I would like to say, after my daughter, I had lost my confidence and I thought that, it's all about now taking care of family and working. But then I discovered this pageant and I spoke to Ankita ma'am and, she made me confident. She said that, you try yourself and, give a try and come to the pageant and see what difference it makes. I'm telling you, these 3 days of my life will be the golden days of my life. I have learned so many things. I have gained confidence in me again, and now I think that the journey has just started. It's a new birth of mine. Now I'm going to achieve more heights. I'm going to take this crown to next level, and each day I'll add one more diamond to this crown by being a good person and always make others inspired with my journey. And thank you so much. Hi, I'm Madhura Somashekar and I'm the first runner-up of Mrs. India International Queen 2022. And I came here all the way from Michigan, USA, and I really thank Mrs. Ankita Saraha ma'am to giving me this opportunity to participate in India while living in an international country. So I'm really, I feel really good about this. How was the whole experience running this journey? What do you want to say? Yes, the
experience was surreal. Like, I have no words to express what I went through. Definitely, I gained confidence, and I also learned a lot about how to be a beauty queen, and with both internally and externally. And I know how to walk now on the stage with confidence, and I've learned a lot of things. Absolutely. One thing I would like to say is that just because you're married doesn't mean that your life has to just belong in just about the family. Like, you can keep giving it a try. Just come to these pageants and explore yourself, and you'll know what you can achieve. Like, you'll never know what you're capable of unless you take the first step and just go for it. And doesn't matter where in life you are, I think this is something you really have to give it a try. For all the married women, every woman. I'm Dhanlakshmi Manasa. मैं सेकेंड रनर अप हूँ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 की। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकिता सरोहा जी मैम का। व्हेन आई कॉल्ड एंड मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था मैडम से, राउंड हुआ था, तो मैडम ने मेरे उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर दिया है। क्योंकि ऐसा मोड, आई एम एक्चुअली वेरी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव पर्सन, लेकिन ऐसा मोड आ गया है कि मैं अपने आप को खो दिया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा ज़ीरो हो गया था। तो मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी। जब रजिस्ट्रेशन किया और मैडम से बात किया तो मैडम ने बहुत मोटिवेट किया मुझे तो इधर आने के लिए, और मैं इधर आई, पार्टिसिपेट किया, एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड एक्सेलेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि सब डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलने हुआ है, सब बहुत सारा लर्न किया है मैंने। आई लर्न वेरी मच, एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने आप में बिलीव करें, और सक्सेस इतना इजी नहीं होता है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम लोग स्ट्रगल करेंगे तो सक्सेस अपने आप आ जाता है, उसके लिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आई फेल्ट वेरी प्राउड, क्योंकि पेजेंट मीन्स आई यूज टू थिंक दैट कि पर्सनालिटी भी मैटर करती है, हाइट, पर्सनालिटी, ब्यूटी, आउटर ब्यूटी भी बहुत सारा मायने लगता है। लेकिन जब मैडम से बात किया था कि ये आउटर ब्यूटी के लिए नहीं है, लाइक आई फील आई यूज लाइक बहुत शॉर्ट हूँ तो ऐसे पेजेंट में नहीं आ सकती हूँ, बट इधर पर्सनालिटी का नहीं है, इनर ब्यूटी देख रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं। और इसके लिए लाइक मैरिड वुमेन के लिए एंड प्रेग्नेंट ऑल्सो, तो मैडम ने इसके लिए भी कोई रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया, अच्छा लगा है पार्टिसिपेट करके, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। Dr. Snehal Deshpande, by profession, a developmental and a neonatal therapist, and I'm the first runner-up of Mrs. India International Queen 2022. As you can see that you wear a crown on her. So how are you feeling, and what do you want to say about this? I think the crown on the head reflects what is there in the heart. The heart is shining with joy and happiness, and I thank the entire team, especially Mrs. Ankita Saroha, for what she has groomed us into, a beautiful human being externally and internally. So that was your dream, and have you ever think that you will sit here and you will give a media bite and all these things, and lots of participating? So how was the experience? So the experience has been very educational, and it has been very deepening, because this is a new experience for us as doctors, as physiotherapists, and I think no doctors would think of even coming into a beauty contest, but now here we are being given the experience that you can be here, you can feel natural about what you are. That naturalness is something which is very, very unique about this region. Hi, I'm Aditi Taneja. I'm the second runner-up of Mrs. India International Queen Classic Category 2022. My journey with Mrs. India International Queen began 8 months back, wherein I got to, we were given a set of questions wherein we were supposed to describe ourselves. So it actually helped me when I sat down to reflect and think about the answer to those questions. I reflected upon what I have done in my life. So it actually helped me, the whole process, to evolve as a personality. It has been a wonderful experience so far. And I would like to thank Ankita Saroha ma'am for giving me this opportunity, and the entire MITQ team for their wonderful support.
थैंक यू सो मच, आपने पूछा। मैं वही चाहती थी जो मैं आज वो हूँ जो मैं चाहती थी जब मैं एज ए कंटेस्टेंट मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया। तो मैं चाहती थी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना, और हर लोगों को जो एजुकेशन की वजह से या फिर फाइनेंशियली आगे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थी, मुझे उनको ही उनकी मोटिवेशन बनना था। और इस पेजेंट के द्वारा आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ, महिलाओं को। तो थैंक यू सो मच मिसेस अंकिता सरोहा जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके माध्यम से हम अपना सपना पूरा कर पाए और महिलाओं को वो सपने देखने की, उनको पूरी करने की भावना दे पाते हैं। पिछले साल मैं यहाँ पर विनर ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 की तरह सम्मानित की गई थी, एंड टुडे दिस टाइम आई एम एज अ जूरी मेंबर। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। आई थैंक मिसेस अंकिता सरोहा मैम, जिन्हें हमें ये बिलीव किया दैट वी कैन बी हियर एज जूरी मेंबर्स। द फीलिंग वाज सुपर्ब, ऑसम। इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम जजिंग ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट, but yes, we have amazing winners and the show was fantastic. It is the most difficult thing. मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है किसी को जज करना, पर हाँ, जब हमें ये मौका दिया गया है तो हमें इस पूरी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना था। सो आई मेड श्योर कि हम लोग हर पैरामीटर पे, हर एस्पेक्ट पे, हर राउंड्स में अपने कंटेस्टेंट्स को अच्छे से परखें, उन्हें समझें, उन्हें जानें, so that we give the best decision. And yes, we are the amazing winners tonight with us. टफ तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे कर रहे हैं और टफ नहीं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। इट्स लाइक ए फेस्टिवल, अ वेरी गुड इनिशिएटिव पुट इन बाय मिसेस अंकिता सरोहा। इट्स नॉट ओनली अ ब्यूटी पेजेंट, इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड, और वही हमें देखने को मिला। सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे अक्रॉस द ग्लोब, दे वर एंजॉइंग देमसेल्फ। वो फ्री होके वो भी डिस्कवर कर रहे थे अपने आप को, जो एक अपने आप में एक बड़ा एक्सपीरियंस था। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं हूँ शिप्रा शर्मा, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 की फर्स्ट रनर्स अप। इस बार मैं एक जूरी मेंबर की हैसियत से आई हूँ और इस बार का कंपटीशन बहुत अच्छा था। सारे कंटेस्टेंट्स जो थे वो नेक टू नेक थे, बहुत डिफिकल्ट था डिसाइड करना फर्स्ट 3 कौन होगा मिसेस में और क्लासिक में, और डिफरेंट राउंड्स में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत इम्प्रेसिव था। और ये प्लेटफॉर्म वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों को ये एक मौका दिया जाता है कि वो अपना टैलेंट जो है वो दर्शाएं, और काफ़ी कुछ उनको सीखने को भी मिलता है इसमें। और सब कंटेस्टेंट से जो मेरी बात हुई है, मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, और बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी मिलती है इवन एज अ कंटेस्टेंट जो मैं आई थी, और इस बार एज अ ज्यूरी मेंबर सबसे कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं हमेशा उस पूरे एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए याद रखती हूँ आगे भी। तो मेरा एक्सपीरियंस फैबुलस था। First of all, congratulations to all the winners, and I'm glad that I'm the part of the show. This show was very successful. It's a well planned show, well coordinated and perfect show, and all the credit goes to Ankita Saroha, and wishing all the best to all the lovely contestants. Fly high and achieve your dreams. वहीं हम बात करें शो के विजेता की तो उसमें मुंबई की मिसेस पल्लवी जाटकर टंडन विजेता बनी। फर्स्ट रनर अप यूएस की मिसेस मधुरा सोमाशेखर और सेकंड रनर अप हैदराबाद की मिसेस मानसा धनलक्ष्मी बनी। वहीं दूसरी क्लासिक कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की मिसेस पारुल शर्मा विजेता रही। फर्स्ट रनर अप मुंबई में मिसेस स्नेहल देशपांडे और सेकंड रनर अप गुड़गांव की मिसेस अदिति तनेजा रही। वहीं सभी विजेताओं ने सबसे पहले शो की आयोजितकर्ता अंकिता सरोहा का धन्यवाद किया और कहा कि इतना बेहतरीन मंच हमें प्रदान किया और आज इसी के बदौलत हम इस खिताब को अपने नाम कर पाए हैं। वहीं शो के आयोजितकर्ता अंकिता सरोहा ने बताया कि हमारा शो करवाने का केवल एक ही उद्देश्य रहता है, महिला को बढ़ावा देना। वहीं मैं साथ ही साथ अपने जूरी मेंबर्स का, मेकअप स्पॉन्सर्स राजश्री मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी और अपनी टीम का भी धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इस शो को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। पिछले साल मैं यहाँ पर विनर ऑफ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2022 की तरह सम्मानित की गई थी, एंड टुडे दिस टाइम आई एम एज अ जूरी मेंबर। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज। आई थैंक मिसेस अंकिता सरोहा मैम, जिन्हें हमें ये बिलीव किया
that we can be here as jury members. The feeling was super awesome. It was a difficult time judging each and every contestant. But yes, we have amazing winners and the show was fantastic. This is the most difficult thing. मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है किसी को जज करना. पर हाँ, जब हमें ये मौका दिया गया है तो हमें इस पूरी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना था. सो आई मेड श्योर कि हम लोग हर पैरामीटर पे, हर एस्पेक्ट पे, हर राउंड्स में अपने कंटेस्टेंट्स को अच्छे से परखें, उन्हें समझें, उन्हें जानें, so that we give the best decision. And yes, we have the amazing winners tonight with us. टफ तो नहीं, मैं ये कहूँगी कि मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड. हम वुमेन एम्पावरमेंट को आगे कर रहे हैं और टफ नहीं, सब लोग एंजॉय कर रहे थे. इट्स लाइक ए फेस्टिवल, अ वेरी गुड इनिशिएटिव पुट इन बाय मिसेस अंकिता सरोहा. इट्स नॉट ओनली अ ब्यूटी पेजेंट, इट इज़ अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड. और वही हमें देखने को मिला. सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे अक्रॉस द ग्लोब, दे वर एन्जॉइंग देमसेल्फ. वो फ्री होके वो रीडिस्कवर कर रहे थे अपने आप को, जो एक अपने आप में ही एक बड़ा एक्सपीरियंस था. मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन, पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. मैं हूँ शिप्रा शर्मा, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2021 की फर्स्ट रनर्स अप. इस बार मैं एक जूरी मेंबर की हैसियत से आई हूँ और इस बार का कंपटीशन बहुत अच्छा था. सारे कंटेस्टेंट्स जो थे वो नेक टू नेक थे. बहुत डिफ़िकल्ट था डिसाइड करना फर्स्ट 3 कौन होगा मिसेस में और क्लासिक में. और डिफरेंट राउंड्स में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया वो बहुत इम्प्रेसिव था. और ये प्लेटफॉर्म वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों को ये एक मौका दिया जाता है कि वो अपना टैलेंट जो है वो दर्शाएं. और काफ़ी कुछ उनको सीखने को भी मिलता है इसमें. और सब कंटेस्टेंट्स से जो मेरी बात हुई है, मुझे बहुत मज़ा आया उनसे बात करके और बहुत इंस्पिरेशन मुझे भी मिलती है. इवन एज अ कंटेस्टेंट जब मैं आई थी और इस बार एज अ ज्यूरी मेंबर, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर जब भी मुझे बुलाया जाता है, मैं हमेशा उस पूरे एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए याद रखती हूँ आगे भी. तो मेरा एक्सपीरियंस फैबुलस था. मैं वही चाहती थी जो मैं आज वो हूँ जो मैं चाहती थी. जब मैं एज ए कंटेस्टेंट मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया तो मैं चाहती थी अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना. और हर लोगों को जो एजुकेशन की वजह से या फिर फाइनेंशियली आगे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती थी, मुझे उनको ही उनकी मोटिवेशन बनना था. और इस पेजेंट के द्वारा आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाती हूँ, महिलाओं को. तो थैंक यू सो मच मिसेस अंकिता सरोहा जी, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके माध्यम से हम अपना सपना पूरा कर पाए और महिलाओं को सपने देखने की, उनको पूरी करने की भावना दे पाते हैं. First of all, congratulations to all the winners, and I'm glad that I'm the part of this show. The show was very, very successful. It's a well-planned show, well-coordinated and perfect show. And all the credit goes to Ankita Saroha. And wishing all the best to all the lovely contestants.